Hi investors and traders, welcome back to the channel. Hope you are all doing well. आज है 31 मई 2024, सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे आ जाएगा रिजल्ट। अगर आपने आज नोटिस किया अदानी के स्टॉक्स में क्या मूवमेंट आया, एवरी सिंगल अदानी स्टॉक जस्ट मूव लाइक एनीथिंग। आप सामने देख सकते हैं each stock has given a very bright move. Adani Enterprises up by 6.5%, Adani Power, Adani Port by 3.9%, Adani Power by 8%। और ये अदानी का स्टॉक मैंने अर्ली मॉर्निंग आपको अपने चैनल पे दिया था, right? And it has given a very bright move. Have a look at it. This is how it just blasted, and our entry was at very low level. So anyway, what I want to tell you कि आपने मेरा 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा था। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा था, दिस वीडियो 3 स्टॉक्स, इन दिस वीडियो मैंने आपको स्टॉक दिया था JSL। कहीं से कोई आइडिया नहीं था कि स्टॉक में इस तरह का मूव आने वाला है, और आई हैव जस्ट रेड द प्राइस, सिंपल। टॉरेंट पावर दिया था आई थिंक आपको उस दिन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिया था, और ये JSL दिया था। I just want to show you how JSL blasted today, right? This is the power of reading the data. Between the lines, you have to read what's happening. Is the market preparing? You know, like these red candles, what are they doing? Are they, ये red candles आपको क्या indicate कर रही हैं, या green candles आपको क्या indicate कर रही हैं? वो आपको between the lines you have to read. And look at the breakout. Look at the massive breakout today. Our entry was at 731 and it moved till 836, almost like full 100 points, more than about 15% move, 100, almost like 15, if not 15, 13-14% move आपको definitely आज के दिन में ही देखने को मिला है। By looking at the volumes, did I know कि इतना massive volume आएगा आज के दिन में? No, I had no idea. But I was reading the price, I was reading the price action, I was reading the delivery, I was reading the build-ups in the stock, and I was looking at my very special stock to set up. And hence I knew that there will be a very bright breakout soon coming up in this particular stock. So this was stock which was given to you 3 days back. Okay, आज का जो स्टॉक था वो था जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आज का स्टॉक था जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। हमारी बाइंग इसमें आई थिंक 726 के पास आसपास आई थी और 761 का हाई लगाया था। लाइव मार्केट में हमने आपको दिया था बीकाजी फूड, or we have given a buy at 567 and it got locked in upper circuit at 597. So this is the power of research, this is the power of knowing the dynamics of the market, right? अगर आपको market के dynamics पता है, then you will be able to make money from the market, right? Otherwise आप किसी गलत trade में फंस जाओगे, right? So you have to really know exactly कहाँ पे आपकी entry होनी है, क्या आपके targets है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, वो सब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एनीवे, आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको मैं 2 स्टॉक देने वाली हूँ। पहला स्टॉक मैं आपको जो देने वाली हूँ, आप सबका बहुत पसंद का स्टॉक, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया इज सम स्टॉक दैट आई डोंट प्रेफर अंटिल आई सी अ गुड सेटअप कमिंग अप, राइट? सो कई सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, राइट, ताकि आपको अपना एक कन्विक्शन डेवलप कर सकें। सो हियर इट इज, this is how, you know, like head and shoulder pattern या whatever you can say, triple bottom, triple, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया आइडिया ने और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आके रीटेस्ट किया और दोबारा से रेडी है ऊपर चलने के लिए। हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? 15.7 पे मिलेगी और हमारा पहला टारगेट इसमें रहेगा 18 रुपए का, राइट? अगर आप इसका FNO में भी ट्रेड लेते हैं, this will give you a good movement, but I will not suggest you until you really hedge your contract. इसका लॉट साइज है 40,000 का लॉट साइज है, राइट? 40,000 का लॉट साइज है, 2 लाख रुपए आपको चाहिए मार्जिन के लिए, एंड the stock really looks good. But again, since if you plan to do trading in FNO segment, you have to hedge your positions. So anyway, I leave it to you over there, and आई फील आने वाले 1-1.5 महीने में आपको ये 2-2.5-3 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। और बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक 18 रुपए 45 पैसे के ऊपर चला जाता है तो आपको इसमें 20 रुपए के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं 2-2.5 महीने के अंदर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है MPS लिमिटेड। दिस इज द स्टॉक व्हिच आई एम फाइंडिंग रियली अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे
इसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं, इस जगह पे काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है एंड प्राइस जो है आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ ही दिखाई देगा। तो यहाँ से मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। और ब्रेकआउट कहाँ पे आ सकता है? इसी जगह पे आ सकता है। टारगेट, आप बहुत बड़े टारगेट्स की उम्मीद लेके मत आइएगा इसमें, क्योंकि इनिशियली आपको एक लिमिटेड टारगेट्स ही मिलेंगे। 1755 के ऊपर आप बाय करेंगे। पहला टारगेट जो आपको दिखाई देगा वो 1850 का आता हुआ दिखाई देगा। 100 पॉइंट का आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। और आप एक चीज और देख सकते हैं कि इसका डिविडेंड आने वाला है, और इसका डिविडेंड जो है 45 रुपीज का आने वाला है, राइट। तो अगर आप डिविडेंड यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बट उतना ही आप देख सकते हैं, हो सकता है उतना ही करेक्शन इसके प्राइस में आ जाए। बट डिविडेंड वही कंपनी देती है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। उसके बाद अगर ये बाय एनी चांस एनी डे इट क्रॉसेस 1885, तो आपको इसमें 2000 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। आपको वेट करना है फॉर सम मोर टाइम, एंड जब तक ये 1887 या 1888 को नहीं क्रॉस करता तब तक आपको 2000 के टारगेट्स नहीं देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सा रूल रहेगा कि 100 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट बुक करिए और बाहर आइए। आई वुड लाइक टू सी व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज, बिकॉज मैंने अभी इसके केवल टेक्निकल्स देखे हैं, फंडामेंटल्स नहीं देखे हैं। पहले बात करते हैं कि कंपनी इज B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस company powering education and research for corporate. MPS has unlocked a new growth trajectory due to the combined effort of lower attention span, rapid growth in digital consumption, and the recent advances in AI by ML. So basically they provide content solution, platform solution, e-learning solutions। अगर इनके revenue की बात करते हैं तो rest of the world about 8%, यूरोप से 35%, यूएसए से 57% आता है इनका revenue। ऑलराइट, और अगर हम बात करते हैं कि the company's revenue target is almost like 1500 करोड़। 2009 73 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 25 की है, ROC is 36%, ROE is about 27%, and company is reduced debt, company is debt free, company has a good return on equity, company has been maintaining a healthy dividend payout of 39.7%, company's working capital requirement has reduced from 34.3 days to 10.4 days. That's a promising thing. Sales की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बट स्टेबलाइज्ड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 5 साल के अंदर सेल्स ऑलमोस्ट लाइक 3.5-4 टाइम्स हो चुकी है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुए हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 2009 में 7% था और आज की डेट में 31% है। देव बीन मेंटेनिंग दिस स्टेबल मार्जिन्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। और इक्विट अगर हम बात करते हैं बोरोइंग्स की, 5 करोड़ की बोरोइंग है और रिजर्व्स हैं 443 करोड़ के। तो रिजर्व एंड बोरोइंग के बीच में अच्छा खासा रेशियो है। दैट मीन्स it's pretty sound, and there is cash from operating activity and profits from operations, and अगर देखते हैं तो net cash flow is positive। डेटर डेज की बात करें तो 67 है और ROCs at 31, 32, 36%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, हल्का हल्का इंक्रीमेंट लेके आ रहे हैं। FIs की होल्डिंग स्टेबल है, DIs ने अपनी होल्डिंग को भी स्टेबल रखा हुआ है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को भी स्टेबल रखा हुआ है 26.6%। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, देयर आर नॉट मेनी रेड फ्लैग्स एंड प्राइस लुक्स अट्रैक्टिव। One can look into creating a position at 1755 for a target of 1850। पहला टारगेट वही रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 1890 के ऊपर। अगर 1890 के ऊपर जाता है तो आपको 2000 के टारगेट इसमें जरूर आते हुए दिखाई देंगे। सो ये दो स्टॉक्स आप मेरी तरफ से रडार पे रखिए, वोडाफोन आइडिया एंड एमपीएस लिमिटेड। बिजनेस फेयर भी एमपीएस लिमिटेड का अच्छा है, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे काम जो लोग ट्रेन करते हैं, बिकॉज उसमें ट्रेनिंग है, ये अच्छे बिजनेसेस होते हैं मेरे हिसाब से। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू पीपल, अगर आपने आज पैसा बनाया या किसी भी दिन पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने किसी यूथ को अभी तक नहीं स्पॉन्सर किया है, सी ऑल माय सर्विसेज आर फ्री एक्सेप्ट एजुकेशन, यू नो व्हिच वी डू। अगर आप किसी बच्चे को एजुकेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज आइडेंटिफाई देम एंड शेयर आवर फ्लायर विद देम।
शेयर द लिंक और हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं। इफ यू आर वंडरिंग कि ये कहाँ पे इसके लिंक मिलेंगे, गो टू द चैनल और आप कम्युनिटी में जाएंगे, आपको हमारा पोस्टर देखने को मिल जाएगा, ये वाला यूथ फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोग्राम। जस्ट स्कैन इट एंड एनरोल, just scan it from the community, you scan it and enroll directly. So with this, I'll be signing off. Take care. See you in the live market on Monday, although I'll be traveling now for 3 weeks to USA. And from there also, I'll be working. And stay tuned, stay updated. All the best. Take care. Bye-bye.